बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम टॉपिक्स अपने कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम जो चीज़ें कर रहे थे वहाँ पे हमने जहाँ पर भी छोड़ा था दैट वाज अवर नंबर 7 पॉइंट, दैट वाज मल्टीपल आर अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। दिस टॉपिक इज अ सब पार्ट ऑफ वेरिएंट्स ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड के वेरिएंट्स में से ये एक पार्ट है। हम कह रहे थे कि सम टाइम इट हैपेंस दैट कि आपका जो कांस्टेंट हो वो जो है पैरेलल हो जाता है यूर objective function, and there exist alternative and multiple solutions. क्या होता है जब आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और आपका जो कांस्टेंट होता है वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पैरेलल। समटाइम दे लुक्स एब्सोल्युटली सेम, बट समटाइम इट मे हैपन दैट देयर कंटेन 6x plus 4y, and that is also the same because if you take two common, your function will appear objective function and your constant will be same, and there exists your multiple or alternative solution. This is, you can see by the given question you can judge whether it is a multiple or alternative solution or not. But sometimes it may happen that when you are doing your problem and you at some stage you find that this problem is multiple or alternative optimal solution. और हम लोगों ने जब ये चीज़ कर रहे थे तो दिस वाज अवर लास्ट टेबल जहाँ पर हम रुके थे। हम कह रहे थे कि थोड़ा सा मैं रिपीट कर लूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके कांस्टेंट को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो आपके पास राइट हैंड साइड पे चीज़ें होती हैं लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं। वी हैव डन दिस वन। उसके बाद हम टेबल बनाते हैं। वी यूज सिंपलेक्स मेथड एज वी नो दैट द मोस्ट नेगेटिव नंबर इज -3 and x will be entering the bases, and some variable will leave the bases, and by seeing that the smallest ratio among s1 s2 and s3 is s1, here s1 will leave the bases। आपको पता है कि s1 क्या करेगा, s1 will leave the bases। this is the most important step while when you are some variable will leave and some variable will enter। this is the most important in your judgment। अगर आप इस चीज़ को क्लियरली समझ जाते हैं और कर जाते हैं then it's easier। all things are related to this one। here you can see that -3 is most negative number and x will enter the basis। और यहाँ basis में आपके पास 3 वेरिएबल हैं और basis में से किसी को लीव करना है। and you can see here by the ratios of s1 s2 and s3, smallest ratio is 40, so s1 will leave the bases, x will enter the bases। और आपको पता है कि हम क्या करते हैं, वही ओल्ड जेड इक्वेशन इक्वल टू न्यू जेड इक्वेशन इक्वल टू ओल्ड जेड इक्वेशन माइनस टाइम्स द पाइवट एलिमेंट, और somehow you make these element zero। कौन सा एलिमेंट, this one this is already zero, this will be zero except वन के अलावा, क्योंकि वन पाइवट एलिमेंट है। इसके अलावा इस कॉलम में अगर आपने ज़ीरो कर लिए इट मींस अब आपकी ऑपरेशन यहाँ भी सही होनी चाहिए, बट यहाँ ये वाली चीज़ हम देख के जज कर पाते हैं कि योर इटरेशन इज मतलब कि सही होगी। ठीक है, देखें here you can see that this 0 and this is 1, therefore you have performed your first iteration, and once again you will see your objective function -2 is the most negative number, and here y will enter the bases, either x, s2 or s3 will leave the bases। by making the ratios on the right hand side we found that 30 is the smallest ratio, therefore s3 will leave the bases, and your 2 is pivot element because y and s3 as column, pivot column is, this is pivot column, this is pivot row, and this is your pivot element, and you have to make this element 0। but before doing this, what we have done, we have make this element as 1 by dividing s3 by 1, because अगर आपने यहाँ पे 1 कर लिया then it will be easier to make this one 0 and this one 0 because this is already 0। that is why we have divided by 2। by dividing the by 2 we have found that there is 1। once again your ratio is 30। वही चीज़ है, सेम, ये कोई फ़र्क थोड़ी को पड़ेगा इस पे। एंड हमें ऑलरेडी पता है y को इंटर करना है बेसिस में, s3 को लीव करना है, और ये पाइवट एलिमेंट है, इसके ऊपर क्या होने चाहिए, सारे 0। here you can see that by performing some operation
वो ऑलरेडी हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं, ठीक है। आपने देखा कि 0 0 0। अब होता क्या है कि जब हम फाइंड कर लेते हैं हमारा जो सॉल्यूशन, हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो आपकी रो है इसमें कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं होगा, और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी नहीं, हेंस दिस इज अवर रिजल्ट। बट जब आर्टिफिशियल वेरिएबल आता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर वो बेसिस को लीव कर रहा है, बट यहाँ तो आर्टिफिशियल वेरिएबल है ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बेसिस है, क्या है बेसिस है, बेसिस में जो बेसिक वेरिएबल हैं कौन से हैं, एक्स, x2, y। कौन से हैं, x, s2 और y। ओके, तीन है, x है, s2 है, y। और इन तीनों के कोफिशिएंट यहाँ क्या होने चाहिए, जीरो। देखिए x का भी जीरो है ऑब्जेक्टिव इक्वेशन में, s2 का भी जीरो है, y का भी जीरो है, और जो बाकी जो वेरिएबल बचे हैं उन्हें क्या कहेंगे, नॉन बेसिक। क्योंकि ये बेसिक हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, नॉन बेसिक। नॉन बेसिक कौन से हैं, s1 और s3। अब S1 और S3 बेसिस में तो नहीं है ना, इसका मकसद है ऑब्जेक्टिव रो में उनके कोफिशिएंट जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। देखें S3 का नॉन जीरो है, S2 का जीरो है, सॉरी S1 का क्या है, जीरो है। हमने देखा कि ये तो मतलब S1 का जीरो है। अगर यहाँ पे S1 का जीरो है, इसका मकसद है इस प्रॉब्लम के पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, एक और भी सॉल्यूशन है। बाय सीइंग दिस टेबल में आप लोग ऐसे देखते हैं, क्वेश्चन में आप लोग कैसे देखते हैं, पैरेलल को। और टेबल में आपने देखा कि भाई बेसिस में जो वेरिएबल होते हैं ऑब्जेक्टिव रो में, उन्हीं के कोफिशिएंट जीरो होते हैं। देखें एक्स का जीरो, S2 का जीरो, और वाई का भी जीरो। फिर S1 का क्यों जीरो, S1 का इसलिए जीरो है कि इस प्रॉब्लम के बाद अल्टरनेटिव या अपना दूसरे सॉल्यूशन है, ठीक है। दैट इज वाई आवर टॉपिक हेडिंग वाज मल्टीपल, यहाँ इसके पास और सॉल्यूशन है। नाउ आप लोगों को पता है कि इसमें जो हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट कर रहे थे, z इक्वल टू 1 at 0, दैट इज अवर रिजल्ट। x is 40, s2 is 30, y is 30, s1 and s3 are 0. You can see from here that s1 and s3 are equal to 0. तो हम क्या करते हैं कि अब हमने कहा कि व्हाट इज द क्लू दैट प्रॉब्लम इज अदर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हमने कहा कि भाई क्या क्लू है कि प्रॉब्लम के पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि देखें यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करें S1 S3 को, दिस इज द फाइनल। यहाँ पे S1 S3 तो है ही नहीं, तो जीरो है ना। बट इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रो, आपके जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट जीरो नहीं होने चाहिए। नॉन बेसिक में आपने देखा S1 का जीरो है, दैट इज व्हाई इट इज अल्टरनेटिव या multiple solution. Here we see that we note from the second iteration that one of the non-basic variable S1 has a zero coefficient in the current objective row, representing z equal to 1 at 0 plus 0 S1 minus 0 S3। आप ऑब्जेक्टिव रो का कोफिशिएंट ये लिख सकते हैं ना, z, दिस इज 1 S3 इक्वल टू 180। और यहाँ पे नॉन बेसिक भी तो है, जो आपका 0 S1 है। क्या है, 0 S1 है। अब कह रहा है, देखें कह रहा है S1 आप कुछ भी रख लें, आप S1 को लाख रखें, 2 लाख रखें, कम रखें, ज्यादा रखें, इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, लेकिन कह रहा है आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसका मकसद है यहाँ पर आपका जो S1 है उसका कोई इम्पेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है। तो दैट रिप्रेजेंट इस प्रॉब्लम के पास और भी सॉल्यूशन है, और जो जो चीजें हमें ऑब्टेन होंगी यूजिंग दिस वन, सो दैट द करस्पॉन्डिंग फिजिबल सॉल्यूशन शुड आल्सो बी ऑप्टिमल। इसके जो करस्पॉन्डिंग हम सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे वो भी आपके पास ऑप्टिमल होगा। नाउ हमें रियलाइज हुआ कि S1 का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। वी कैन फाइंड अनदर ऑप्टिमल बेसिक सॉल्यूशन बाय ब्रिंगिंग द नॉन बेसिक वेरिएबल S1। भाई S1 अब इंटर करेगा, बिकॉज S1 का कोफिशिएंट जीरो है यहाँ पे हमने देखा, और इसके पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ S1। S1 को इंटर करना है, किसी को तो लीव करना होगा। स्मॉलेस्ट रेशियो इज 30 and 30। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखें S1 है, आप रेशियोज बनाएंगे यहाँ से, और आपका जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो है, क्योंकि दिस इज योर नेगेटिव, आप देख रहे हैं ये नेगेटिव है, इससे डिवाइड होगा ये नेगेटिव हो जाए, कुछ भी है, और इससे ये डिवाइड करेंगे ये पॉजिटिव। तो स्मॉलेस्ट जो आपके पास रेशियो आएगा वो होगा दिस वन। You can perform the operation and check yourself, this will be the smallest ratio, okay।
और जब ये सिमिलर रेशो बनेगा तो S2 को क्या करना है, S2 विल लीव द बेसिस, S1 विल एंटर द बेसिस, S2 विल लीव द बेसिस। हियर यू कैन सी दैट। और आपको पता है कि सॉरी, आपको पता है कि S1 क्या करेगा, आपका जो है S1 लीव करेगा और S2 सॉरी S1 एंटर करेगा, आई एम सॉरी, S1 एंटर करेगा, S2 लीव करेगा। और दिस इज योर पाइवट एलिमेंट। इसके ऊपर क्या होने चाहिए, ऊपर और नीचे जीरो। यू कैन सी दैट देयर इज अ जीरो। ओके, हमने कहा कि भाई अब भी ऑब्जेक्टिव रो में आपके पास क्या है, स्टिल आपका जो है सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव नंबर इन योर ऑब्जेक्टिव रो। हेंस वी कंक्लूड दैट, एक आपने ये सॉल्यूशन निकाला, आपने कहा ये भी इसी का सॉल्यूशन है, x20, ओके, y60, s120, s2 and s3 is 0 is another basic feasible solution. By seeing the objective row we can realize that हमारे पास जो ये बेसिक वेरिएबल हैं इसमें तीन इसके कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव रो में जीरो होने चाहिए, x का भी है, y का भी है, s1 का भी है, और हमने देखा s2 का भी है। अब s2 का भी है, ओ हमने देखा कि s2 का है, तो हमने कहा कि इसके पास तो और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। सिमिलरली इसके पास और भी होंगे, हम सारे तो नहीं निकालेंगे। Hence, we are concluding here that still another iteration can also be performed as the current objective row as a zero coefficient for a non-basic variable. वही जो मैंने आपको बताया, नॉन बेसिक वेरिएबल S2 का कोफिशिएंट जीरो आ रहा है और होना नहीं चाहिए। दैट इज वाई इसके पास और भी सॉल्यूशन होंगे, बट इन दिस केस वी आर कंक्लूडिंग दैट वी हैव ओनली टू ऑप्टिमल बेसिक सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। हमने कहा कि भाई यहाँ कंक्लूड करते हैं इसके पास टू सॉल्यूशन है, स्टिल देयर आर मोर सॉल्यूशंस, क्योंकि हमने देखा कि नॉन बेसिक वेरिएबल S2 का कोफिशिएंट जीरो है, तो एक और इटरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, फिर हम रियलाइज करेंगे हो सकता है और भी हो सकता है यही हो। However, any weighted average of the optimal solution must also be optimal non-basic feasible solution. Indeed, there are infinite number of such solutions corresponding to the point on the line segment between the two optimal extreme points. आपको पता है मैंने यही कहा कि और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं इनफाइनाइट, बिकॉज on the basis of your objective row. Okay, the same idea can also be checked by counting the number of zero coefficient in the objective row in the optimal table. In all linear programming problem implying simplex method, there will be as many zero coefficient in the objective row as there are basic variable. ठीक है, यार आप टेबल को देख के भी बता सकते हो, बेसिक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होते हैं ऑब्जेक्टिव रो में जीरो होते हैं, अगर उनके अलावा किसी का है तो आप कहेंगे इसके पास अल्टरनेटिव या ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। But if we find that optimal table contains more zero coefficient in the objective row than the number of variable in the basis, कितने वेरिएबल हैं इसमें, तीन, कितने जीरो हैं इसमें, चार। देखें, बेसिक वेरिएबल से ज्यादा जीरो है, इसका मकसद यही है कि दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट देयर विल बी येट अनदर ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, द डिफरेंस हमें ये बता रहा है, रेफर कर रहा है कि इसके पास और भी सॉल्यूशन होंगे। हम सारे तो नहीं निकालेंगे ना, बट व्हेन वी आर गोइंग टू कंक्लूड समथिंग तो हम उसके बिहेवियर को देख के कंक्लूड करते हैं कि इसके पास और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। एंड एक से ज्यादा हो गया तो अल्टरनेटिव और ऑप्टिमल, अल्टरनेटिव तो हो ही गए और मल्टीपल हो ही गए, क्योंकि आपको पता है मल्टी रिप्रेजेंट करता है, मल्टीपल एक से ज्यादा कोई करता है। दैट इज इट फॉर द मल्टीपल और अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हमने आज इसको कंप्लीट किया, और हमारा लास्ट जो है दैट इज अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। ये भी बहुत आसान है। ठीक है, होता क्या है अक्सर के आप जब डिसीजन वेरिएबल सेट करते हैं, आप कहते हैं कि भाई डिसीजन वेरिएबल आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आप लोगों को पता है डिसीजन वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव। आप कोई चीज़ बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैंने चीज़ें बना के तोड़ दी, मैंने चीज़ें बना के फेंक दी। वी कैन नॉट से दिस वन। हमें क्या होता है कि समटाइम्स जो आपके पास प्रॉब्लम गिवन होती है उसमें आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल गिवन होता है। आप उसको क्या करते हैं, उसको रिस्ट्रिक्टेड करते हैं बाय डूइंग सम changing in your objective function and subject to the constant। हम क्या करते हैं, देखें, thus far we have made the restriction for the decision variable to be non-negative। वही बात की हमने, अभी तक यही कहा है कि decision variable non-negative होता है।
in most of the practical or real life problem, but there may be situation in which this is not always the case. कह रहा है sometime कभी कभी ऐसे भी होता है, ये केस नहीं होता. However, the simplex assumes non negative variable, लेकिन simplex आपको लगाना है वो तो negative non negative variable उठाता है. But if the problem involves variable with unrestricting in sign, कह रहा है अगर problem में sign की restriction नहीं हो, लाइक देखें इसमें इसमें इसने कहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसने x की कोई हमें इंडिकेशन नहीं दी है. हमें तो पता ही नहीं है x, क्या पता नेगेटिव हो, क्या पता जीरो हो. जीरो तो हो सकता है, क्या पता नेगेटिव हो. तो इससे हमें कन्वर्ट करना है इन प्रॉपरली. हम कैसे इसको लिख सकते हैं, देखें. द वेरिएबल कैन टेक पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैल्यू. हमें पता है द वेरिएबल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. ठीक है. द प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट वन इन्वॉल्विंग वन ओनली नॉन नेगेटिव वेरिएबल. कह रहा है आप प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. कह रहा है वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस एज द डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल. कह रहा है आप क्या करें, जिस पे अनरिस्ट्रिक्शन है, जिस वेरिएबल पे, आप उसको डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करें, लेकिन वो दोनों वेरिएबल क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव. ऐसे नहीं कि एक नेगेटिव, दोनों नॉन नेगेटिव, उनका डिफरेंस. मैंने कहा एक्स वाई लिख दिया, एक्स माइनस वाई. मैंने कहा वाई जेड, वाई माइनस जेड लिख दिया. इन दिस केस इफ एक्स इज द वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, कह रहा है अगर आपके पास, हमने कहा एक्स एक वेरिएबल है जिसमें अनरिस्ट्रिक्टेड साइन में, यहाँ पे देखें हमें पता ही नहीं है एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, वॉट एवर इट इज, हम कहते हैं कोई मसला नहीं है. हम कहते हैं द सेम कैन बी रिप्लेस विथ टू अदर वेरिएबल से एम एंड एन. हमने कहा कि उसको हम एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो चार नॉन नेगेटिव. एम और एन क्या है, नॉन नेगेटिव है, ये चीज याद रखें. बिकॉज what we are trying to achieve, we are making our decision variable greater than equal to zero. मतलब हम कह रहे हैं कि वो ग्रेटर देन नॉन नेगेटिव है. नॉन नेगेटिव का मकसद क्या होता है, वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. ठीक है. which are non-negative, that is here we should write greater than equal to. Here equal is missing, thus we have x equal to m minus n. हमने कहा इसका मकसद है x equal to m minus n, और m और n आपके क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं. लेकिन एक चीज मसला करती है, दोनों भले पॉजिटिव हों, क्या पता n की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू 4 है, फिर क्या करेंगे, then we have to imply another condition. देखें, and since m and n are non-negative, okay, the value of x will be positive. कब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब m n से बड़ा हो. अगर m 5 हो, n 4 हो, पॉजिटिव होगी. m 10 हो, n 9 हो, तब भी ये बड़ा है, पॉजिटिव होगी. अगर m आपने 9 रखा, n 10 रखा, तो m n से छोटा हो गया तो नेगेटिव होगी. देखें, नेगेटिव. अगर दोनों बराबर हैं तो जीरो हो जाएगी. दस द वेरिएबल ऑफ वैल्यूज ऑफ m एंड n व्हिच आर नॉन नेगेटिव, हमने कहा दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव है, will decide the fate of the variable x. m और n की जो वैल्यू है वही फेट को डिसाइड करेगी. इसका रिजल्ट क्या है, if we are saying m greater than n, then your m and n will result make the x positive. Since the simplex method examines the basic feasible solution extreme point, it will always have at least one of these two non-negative variables set equal to zero. देखें, समझने की बात है. कह रहा है since the simplex method examines the basic feasible solution extreme point, कह रहा है वो क्या करता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बताता है. इट विल ऑलवेज हैव, कह रहा है इसका मकसद है ये हमेशा एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल सेट इक्वल टू जीरो. कह रहा है सिंपलेक्स मेथड हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बताता है, एक्सट्रीम पॉइंट बताता है. इसका मकसद है उसके बाद हमेशा क्या होगा, इन दोनों में से एक जीरो होगा. क्या होगा, टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल सेट सेट इक्वल टू जीरो. ठीक है. इनमें से दोनों आपके पास क्या होंगे, हमेशा एक जीरो होगा. इट विल ऑलवेज हैव एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल सेट इक्वल टू जीरो. ओके, लेट्स डू एन एग्जांपल. हमने कहा हमें मैक्सिमाइजेशन मिली हुई है. आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन है. हियर वी कैन सी दैट everything is okay, but the x is not restricted to be greater than equal to zero. why है, x तो अनरिस्ट्रिक्टेड है. अनरिस्ट्रिक्टेड हम क्या करेंगे, x को लिखेंगे m माइनस एन. देखें, नोट दैट ओनली y इज नॉन नेगेटिव. हमने कहा कि देखें y नॉन नेगेटिव है, y पॉजिटिव है और जीरो है.
एंड नो मेंशन इज मेड अबाउट एक्स, एक्स के बारे में तो इसने कुछ बताया ही नहीं है एक्स क्या है। हेंस एक्स हैज टू बी ट्रीटेड एज वेरिएबल, इसका मकसद है एक्स को आप क्या करेंगे, ट्रीटेड एज वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इंसान बिकॉज नो इंडिकेशन इज देयर, इट कैन टेक एनी वैल्यू पॉजिटिव, कह रहा है ये कोई भी पॉजिटिव वैल्यू उठा सकता है, नेगेटिव या फिर जीरो, तीनों वैल्यूज ये उठा सकता है। by assuming that x equal to m minus n, हमने कहा then we have an equivalent problem by replacing x की जगह क्या रखें m minus n, इसकी जगह क्या रखेंगे m minus n, here m minus n, here m minus n, जहाँ जहाँ x होगा m minus n रख दे देखें। और हमें पता है m और n क्या है, पॉजिटिव है। देखें m और n पॉजिटिव है, लेकिन x की वैल्यू तो नहीं पता है ना, x की वैल्यू तो अभी निकालनी है। इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्ट वेरिएबल एंड एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइजेशन है, इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, ले आए, हम कहते हैं लेस देन ए प्लस एस वन ऐड करेंगे, लेस देन ए प्लस एस टू करेंगे, लेस देन ए प्लस एस थ्री करेंगे, दिस इज आवर बेसिक इक्वेशन, इन्हें कन्वर्ट करेंगे in terms of simplex table, we have transformed the equation in terms of simplex table, and the most negative number is -5, okay। आपका जो मोस्ट नेगेटिव नंबर है -5, y विल एंटर द बेसिस एंड हेंस y एंटर करेगा तो सिमिलर रेशो क्या है 3 है, s2 क्या करेगा, लीव करेगा, यहाँ से s से, यहाँ से s से, आपके पास ये जो 1 है ये पाइवट एलिमेंट है, इसके ऊपर और नीचे क्या होने चाहिए 0। अब वही सेम ऑपरेशन लगाएंगे, न्यू z इक्वेशन बनाएंगे, ओके, न्यू s1 इक्वेशन बनाएंगे, न्यू s3 इक्वेशन बनाएंगे, हेंस यू कंक्लूड दैट that first iteration answer. Then you can see here once again your objective row has contained the negative number -2, आपने x की जगह m और n रखा है, ठीक है, टेबल में कोई फर्क नहीं है, x की जगह m और n, here you can see that once again there is negative number -2, most negative number in our z equation is -2, therefore m will enter the basis, m को बेसिस में एंटर करना है, चले भाई m क्या कर रहा है, बेस में एंटर करेगा, किसको लीव करना है, सिमिलर रेशियो दैट इज 3, 3 को लीव करना है तो s3 और m पाइवट एलिमेंट इज 1, m आ जाएगा s3 की जगह, देखें आ गया m, ओके। और आप क्या करते हैं, इसके नीचे ऊपर सारे जीरो होंगे, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, ये तो यही जीरो, देखें वही सेम ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे, वही जो प्रीवियसली हम करके आए, न्यू s1 z इक्वेशन बनाएंगे, न्यू s1 इक्वेशन बनाएंगे, न्यू y इक्वेशन बनाएंगे, और आप क्या करते हैं s3 को रिप्लेस करते हैं m से, ये इक्वेशन सेम ही रहती है, ओके। देखें once again we can see here that there is no negative number in your objective row, hence we conclude that this is our result, and we have maximized our objective function, therefore the solution to the original problem will be z equal to 21, okay। s1, what is s1, s1 is 1, what is y, y is 3, what is m, m is 3, जो भी मिसिंग है वो आपके जीरो हो जाते हैं, n नहीं है n विल बी जीरो, ठीक है। उसके बाद s2 नहीं है जीरो, s3 नहीं, बेसिस में जो नहीं होते हैं वो जीरो होते हैं। और देखें एक चीज अभी हम पढ़ के आए हैं प्रीवियसली, आप क्या कहते हैं कि भाई आपके पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कब आते हैं, जहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड का भी है, क्योंकि दिस इज बेसिकली x, ओके, दिस इज बेसिकली ट्रीटेड एज एक्स। तो यहाँ पर देखें जितने आपके पास बेसिस होते हैं उतने यहाँ पे जीरो होते हैं, लाइक वाइज हमने कहा कि भाई आपके पास जो बेसिस हैं इसमें 3 वेरिएबल हैं, s1 y और m, इसके अलावा जो भी वेरिएबल होते हैं उनको आप सॉल्यूशन में क्या अज्यूम करते हैं, जीरो। देखें z, दिस इज z, z की वैल्यू आ गई 21, दिस इज s1 इज 1, दिस इज y इज 3, दिस इज m इज 3, अदर विल बी ट्रीटेड एज जीरो, क्योंकि s2 बेसिस में नहीं है, s2 इक्वल टू जीरो, s3 नहीं है जीरो, n इक्वल टू जीरो, तो आप रख दें m माइनस एन, m माइनस एन क्या हो जाएगा 3 माइनस जीरो 3, y3। if the problem original problem has more than one variable which is unrestricted in sign, कह रहा है अगर आपके पास जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसमें जो आपके पास क्या है, एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं जो अनरिस्ट्रिक्टेड है साइन में, क्या है, एक से ज़्यादा वेरिएबल है, जैसे भाई हमने कहा कि 3 वेरिएबल हैं ऑब्जेक्टिव रो में x y z, और आपके पास नीचे क्या है x y z,
कह रहा है अगर x y z नहीं है, then the procedure systemized by replacing each such unrestricted variable xi by xj equal to mj minus n, where mj is greater than 0 and n is greater than equal to 0 as before, but n is the same variable for all relevant j. n same ही रहेगा. That is it for today. हम लोगों ने दो चीज़ें कवर की. दैट वाज के आप लोगों ने ये सीखा कि अल्टरनेटिव और ऑप्टिमल और मल्टीपल सॉल्यूशन कौन से होते हैं. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था और आज भी हमने इसको कंटिन्यू किया. उसके बाद आप लोगों ने कहा कि अनरिस्ट्रिक्टेड क्या होता है, कोई एक वेरिएबल आपके ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन है और जो आपके कांस्टेंट है उसमें एक वेरिएबल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है. तो हम अज्यूम करते हैं उसको बाय इंट्रोड्यूसिंग द डिफरेंस बिटवीन टू न्यू वेरिएबल. हमने कहा भाई वाई मिसिंग है, एक मिसाल है, वाई मिसिंग है तो हम कहते हैं वाई इक्वल टू एम माइनस एन. इन दिस एग्जाम्पल हमारे पास क्या मिसिंग था, एक्स. तो हमने कहा एक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमने कहा कोई मसला नहीं है, एक्स इक्वल टू एम माइनस एन. ठीक है, हमने कहा एक्स बराबर एम माइनस एन. अगर एम एन से बड़ा है तो फिर पॉजिटिव होगा, अगर एम एन से छोटा है तो नेगेटिव होगा. अगर एम और एन की वैल्यू सेम है तो जीरो हो जाएगा आपके पास. वी हैव टू सी व्हाट इज हैपनिंग. हम कहते हैं कि भाई कन्वर्ट करें, हमने उसको कन्वर्ट किया और हमें पता है कि एम और एन पॉजिटिव होंगे. एम और एन पॉजिटिव होंगे. देखिए हमने इक्विवेलेंट सिस्टम बनाया. ठीक है, एम और एन पॉजिटिव होंगे, समझने की कोशिश करें. एम और एन पॉजिटिव होंगे, हो सकता है एक्स नेगेटिव हो, इट डज नॉट हो सकता है एक्स जीरो. दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो एक्स जीरो. लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा, शुरू में ही पढ़ा, इट विल ऑलवेज हैव एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल सेट इक्वल टू जीरो. क्योंकि इन टर्म्स ऑफ सिंपलेक्स बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या एक्सट्रीम पॉइंट्स जब हम निकाल दें देन क्या हो जाता है कि ये जो हम अज्यूम कर रहे हैं एम और एन, इनमें से एक को किसी को जीरो होना होता है. अगर यहाँ पे एम जीरो होगा तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा, एन जीरो होगा तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा. देर आर टू पॉसिबल केसेस. और हो सकता है दोनों जीरो, बिकॉज वही से एटलीस्ट का मकसद है हो सकता है एक, हो सकता है दोनों जीरो हो गए तो एक जीरो हो जाएगा. ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर. We have transformed the system by introducing x equal to m minus n. हमने इसकी इक्वेशन बनाई, सिंप्लेक्स की टेबल बनाई. मोस्ट नेगेटिव नंबर -5 था, y पाइवट कॉलम हो गई. सिमाल रेशो आपके पास 3 था, s2 आपके पास पाइवट रो हो गई. ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, आपके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, हम यही है ना, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. हमने क्या किया, इसके ऊपर जीरो बना दिए. बाय यूजिंग न्यू जेड इक्वेशन बनाएंगे, न्यू s1 बनाएंगे, न्यू s3 बनाएंगे एंड s2 को रिप्लेस कर देंगे बाय y. once again we have see that -2 is most negative number. We have performed the same operation and concluded that m s1 और y हमने फाउंड किया. और हमने ये देखा कि n तो इसमें है नहीं, n को हमने जीरो का. हमने ये देखा कि s2 भी बेसिस में नहीं है, वो भी जीरो हो गया. हमने ये देखा कि s3 भी नहीं है, वो भी जीरो हो गया. और यही चीज़ थी कि एटलीस्ट एक को जीरो हो सकता है. इन दिस केस योर n इज जीरो. And that is the conclusion of the lecture today. Inshallah ta'ala, we will continue in our next class. We will continue our next topic, that is duality. I hope that everyone has now clear idea about variants of simplex method. अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछे. थैंक यू.